Hello students, good morning. I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to solve exercise question number 2.1 and 2.2. Let's start with the question number 1. Right? The question is calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. Right? कि अगर हम 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन ले तो उसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट वो हमें फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट question. And second question of the first is calculate the mass and charge of 1 mole of the electron. For the 1 mole electron we have to calculate the mass and also we have to calculate the charge, right? So let's start for the first question, in which we have to calculate the number of electrons present in 1 gram. Alright, so first of all we write the mass of 1 electron, right? So mass of 1 electron equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram, or we can say that 9.11 into 10 to the power minus 28 gram, right? We convert that kilogram into a gram, so we have to multiply by 10 to the power 3. Now here we have to find out the number of electron present in 1 gram. For that we can write that in 9.11 into 10 to the power minus 28 gram contains 1 electron. कि इतना अगर हम मास ले तो उसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन. देन इन 1 gram contain how many electrons, right? So we can write that 1 divided by 9.11 into 10 to the power minus 28, right? Here 1 divided by 9.11 it will give 0.1098, और ये माइनस 28 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस 28, राइट? अब वन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी विल शिफ्ट 1 डिजिट राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट 1.098. राइट हैंड साइड जाने से क्या होता है 1 डिजिट माइनस होता है, तो यहाँ पे 28 की जगह हो जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो 1 ग्राम अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का तो उसमें 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. सही है? ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें. उसमें क्या है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट मास एंड चार्ज फॉर द 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो पहले तो एक के लिए हमें पता होना चाहिए. तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, वो कितना है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, राइट? देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर जितने. सही है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना हो जाएगा. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर विथ दिस, सो वी विल गेट 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट? सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट 2 डिजिट्स यू विल गेट 54.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ पे ऐड करना होगा -8 प्लस 1 हो जाएगा तो इट विल बी अ -7. सो 5.486 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम. If we take 1 mole of electron, then the mass of that 1 mole electron will be 5.486 into 10 to the power -7 kilogram. Right? Now, the second question is, in second there is a second one is charge of that 1 mole of electron. For that, यहाँ पे हम we have to know that the charge for the 1 electron. So, charge of 1 electron will be 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? Now therefore charge of 1 mole
1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, उसका चार्ज कितना हो जाएगा. देन वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दिस एवोगैड्रो नंबर इनटू 1.602. So 1.602 into 10 to the power minus 19 multiply by 6.022 into 10 to the power 23. Now ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन वे हो जाएगा 9.65 एंड माइनस 1924 उसका हो जाएगा +4 कूलम. मीन्स द चार्ज फॉर द 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी 9.65 into 10 to the power 4 कूलम. Okay, did you get it? Now see the second question. The second question, in that question we have 3 sub question. See the first sub question, in which calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. Right, we have to find out the total number of electrons which are present in 1 mole of the methane. 1 by 1 हम उसे देखेंगे और उसे सॉल्व भी करते जाएंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, द इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है किसमें 1 मोल ऑफ मीथेन में, वो फाइंड आउट करना है. तो उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसे भी सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ हियर हमें 1 मोल में फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पहले ये पता होने चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है. सही है, सो वी कैन राइट दैट 1 molecule of CH4 contains कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है. तो जो हमारा CH4 है मीथेन, उसमें जो कार्बन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन. सही है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. उतने यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4. मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के. ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हाइड्रोजन के. तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन. सही है, किसमें 1 मॉलिक्यूल अगर CH4 का ले, मीथेन का ले, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. नाउ यहाँ पे हमें 1 मोल के लिए फाइंड आउट करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए है कि 1 मॉलिक्यूल के लिए इतने होते हैं. देयरफॉर for 1 mole, or we can say that Avogadro number जितने molecules, उसके लिए 1 mole of CH4 contain how many electrons, right? तो हमें क्या करना है, जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है. सो 6.022 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाई 10. यहाँ पे 10 to the power 1 कह सकते हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा. तो वी विल गेट 6.022 इंटू 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मीथेन. सही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं. फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. सही है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. किसमें, इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14. क्या इफ वी टेक 7 milligram of carbon 14, we have to find out or calculate the total number of neutron and total mass of neutron which are present in 7 milligram of that C14. right? चलो, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए 7 मिलीग्राम में फाइंड आउट करने हैं. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर and mass of neutron present in 7 मिलीग्राम ऑफ C14. सही है, तो 7 मिलीग्राम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 C14 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द 7 मिलीग्राम. राइट, सो number of neutron in 1
एटम ऑफ C14, तो वो कितने हो जाएगा, उसका जो मास है वो माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. नाउ हियर द मास ऑफ C14 इज 14 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6. सो यू विल गेट कितने हो जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट वन एटम ऑफ C14. सही है, NO लिखा है, ओपन नॉट मतलब के न्यूट्रॉन है. ओके, नाउ हमें तो 7 मिलीग्राम में फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम ये ऐसा बोल सकते हैं, जो C14 है उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, मोलर मास 14 ग्राम. सो 7 मिलीग्राम से पहले हम ये बोल सकते हैं, इन 14 ग्राम ऑफ C14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, ये एक के लिए था सही, कि अगर हम 1 एटम ऑफ C14 ले तो उसके लिए 8 है. जो 14 ग्राम है उसमें 14 ग्राम मतलब कितने होते हैं हमारे, तो एवोगेड्रो नंबर जितने हमारे पास कार्बन है, C14 कितने हैं, एवोगेड्रो नंबर जितने. सही है, 14 मास कितना होता है, तो एवोगेड्रो नंबर जितने अगर हमने C14 लिए, सही है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, तो 14 ग्राम मास हो जाएगा. तो अगर 14 ग्राम में न्यूटन फाइंड आउट करने हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 8 बाय अ एवोगेड्रो नंबर, राइट. सो वी विल गेट 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर. चलो, ये तो 14 ग्राम की हो गई, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है फॉर द 7 मिलीग्राम. सो वी कैन राइट दैट 7 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे, देन इट विल बी अ 7 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ C14 contain number of neutron equal to how much, right. तो कितने हो जाएंगे, how many neutron contained by this 7 milligram और 7 into 10⁻³ ग्राम. सही से शांति से समझना, कोई इतना टफ नहीं है. समझ में आया कि जो 8 न्यूट्रॉन है किसके लिए है, 1 एटम ऑफ C14 के लिए है. ओके, हमें फाइंड आउट करना है फॉर द 7 मिलीग्राम. तो यहाँ पे ग्राम की बात की है, तो पहले हमने 1 एटम की जगह उसके ग्राम में एक टर्म लिख ली, जो कि है 14 ग्राम में. क्यों, क्योंकि 14 उसका मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूलर मास में जो मोलर मास है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो एवोगेड्रो नंबर जितने एटम होते हैं. सही है, अगर 1 एटम के लिए 8 न्यूट्रॉन है, ओके, प्रेजेंट, तो एवोगेड्रो नंबर जितने C14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर. और ये जो हमारे एवोगेड्रो नंबर जितने हमारे न्यूट्रॉन C14 है, ओके, वो उसका मास कितना होता है, तो 14 ग्राम जितना. अगर 14 ग्राम के लिए इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो 7 मिलीग्राम के कितने. सही है, सिंपल है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, ये भी ऊपर टर्म चली जाएगी, 7 इंटू 10⁻³ और इसे डिवाइड करना है बाय द 14 ग्राम, राइट. इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट 24.088 इंटू 10⁻20, राइट. अब 1 डिजिट हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो वो ऐड होगा, सो वी विल गेट 2.408 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द 7 मिलीग्राम ऑफ C14. आई बात समझ में कि C14 7 ग्राम मिलीग्राम ले तो उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतने. कहाँ से आए, तो अगर 1 एटम ऑफ C14 है तो उसमें 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अगर हम एवोगेड्रो नंबर जितना ले, जो कि कितना होता है उसके मोलर मास जितना, मतलब 14 ग्राम कार्बन ले, तो उसमें होंगे 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर. सही है, क्योंकि इसका क्या है, मोलर मास ऑफ C14 है, राइट ना. अगर 14 ग्राम के लिए इतना है, तो जो गिवन है 7 मिलीग्राम, उससे भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ ग्राम. उसमें कितने होंगे, ओके, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 मिलीग्राम में 4.08 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट. अब हमें क्या करना है, तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द
मास ऑफ दैट न्यूट्रॉन, राइट, कि ये जो 7 मिलीग्राम है उसका न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, सही है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, सपोज कि ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। अब बी बोल देते हैं हम कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो मास फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 1 न्यूट्रॉन का मास पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन वो कितना हो जाएगा, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जितना होता है ना। हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, इतने, तो हमारा उसका मास कितना हो जाएगा 7। ये हमने इसीलिए फाइंड आउट किया ना 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन है, तो डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। अगर 1 न्यूट्रॉन है तो उसका जो मास है वो इतना है। देन मास ऑफ 2.408 into 10⁻21 neutron is how much? So you have to multiply that two terms. 2.408 into 10⁻21 multiply by 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 4.0347 इंटू, यहाँ पे 21 माइनस 27 हो जाएंगे -6 किलोग्राम। तो अगर 7 मिलीग्राम आप C14 लेते हो, उसमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका मास हो जाएगा इतना। ओके, डू यू गेट इट? शांति से समझना, कोई टफ नहीं है। ओके, तो ये सेकंड वाला भी हमने फाइंड आउट कर लिया ना। फॉर द third question, right, find total number and the total mass of proton in 34 milligram of NH3 at STP। जो आगे वाला क्वेश्चन किया उसके जैसा ही कुछ है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने थे। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, राइट, in the 34 milligram of NH3, right, and also it's given that will the answer change if temperature and pressure are changed, कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है या नहीं। तो पहले तो हम उसका आंसर फाइंड आउट कर ले, सही। यहाँ पे भी हमें टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ दैट प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं जो प्रेजेंट है 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। सो थर्ड वाला क्वेश्चन भी सिंपल में लिख लेते हैं। कैलकुलेट मास एंड number of proton present in 34 milligram of proton। तो ये 34 मिलीग्राम ऑफ, सॉरी प्रोटॉन नहीं है, NH3। ओके, NH3 अगर 34 मिलीग्राम ले तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और उसमें जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका मास क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल ले अगर NH3 का तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, सही है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन्स, कितने कंटेन करता है, तो अगर नाइट्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 7 फॉर द नाइट्रोजन। एंड एक हाइड्रोजन के लिए एक प्रोटॉन होता, तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो जाएंगे फॉर द हाइड्रोजन। सो टोटल 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, सही है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, देन उसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो इसका जो नाइट्रोजन है उसका मास होता है 14, इसका हो जाएगा 3, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 17, राइट। तो वी कैन से दैट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन 10 प्रोटॉन, देन 17 ग्राम, राइट, मीन्स एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन्स, कितने कंटेन करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई दैट एवोगाड्रो नंबर, सही है। सो 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर जितने प्रोटॉन होंगे, सही है। कितने 17 ग्राम में, क्यों, क्योंकि वो उसका क्या है, मोलर मास है। ओके, नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो गए 3।
तो 14 + 3 17, 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एवोगेड्रो नंबर जितने, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल में कितना है, सही है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है एवोगेड्रो नंबर से इस 10 को। ओके, तो हमें 17 ग्राम NH3 में कितने प्रोटॉन है वो मिल जाएंगे। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द 34 मिलीग्राम, सो वी कैन राइट दैट if in the 17 gram of NH3 contain 10 into Avogadro number proton, then 34 into 10 to the power minus 3 gram of NH3 contains, कितने कंटेन करेंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ये हो गया 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा हमारा ये 17। राइट, आई बात समझ में। पहले हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट किए, कैसे, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं, 7, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। राइट, अगर 1 मॉलिक्यूल में इतने हैं तो एवोगेड्रो नंबर जो कितने का होता है उसके मोलर मास जितना, मतलब 17 ग्राम ऑफ NH3 में कितने प्रोटॉन होंगे, तो 10 इंटू एवोगेड्रो नंबर। राइट, नाउ हियर अगर 17 ग्राम में इतने हैं तो हमें जो गिवन है 34 मिलीग्राम उसमें कितने प्रेजेंट होंगे वो इजीली हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप ये दोनों को, ये सारी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 12.044 इंटू 10 टू द पावर 21। राइट, अब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, देन वी हैव टू ऐड 1 डिजिट, सो इट विल बी 1.204 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन विल बी प्रेजेंट इन दैट ऑफ 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। राइट, सही है। नाउ अब ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ दैट प्रोटॉन, सो ये फाइंड आउट कर लिए। नाउ टर्न फॉर द बी। राइट, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, वो कितना हो जाएगा, तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो मास ऑफ दैट मच प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इतना होता है, तो मास ऑफ 1.204 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। राइट, so we will get 1.204 into 10 to the power 22 into 1.673 into 10 to the power minus 27. Right, if you multiply that two term you will get mass of the proton is 2.015 into 10 to the power minus 5 किलोग्राम। तो अगर हमने 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 लिया तो उसके अंदर इतने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और वो जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका मास होगा 2.015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोग्राम। अब और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करते हैं तो ये जो डिजिट्स है वो चेंज होंगे या नहीं, तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं तो उसका मास भी चेंज नहीं होगा। सो वी कैन राइट दैट देयर इज नो चेंज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।